وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ کفار مکہ کو اب حضرت ابراہیم کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا اور امام مانتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے اگر تم نے تقلید آبا ہی کرنی ہے تو حضرت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا میں اس سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور عنقریب وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم یہی بات اپنی اولاد میں چھوڑ گئے، یعنی کلمہ توحید کی بات اپنے اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اسی کی طرف پلٹ کر آئیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور ان کے پاس واضح رسول آ گیا۔ ان کی ہٹ درمی کی وجہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قریش کو طاقت، عزت، دولت، امن دیا تھا اور اس بنا پر یہ متکبر ہو گئے اور اسی وجہ سے یہ اس دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا تھا یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارا حق آیا اور واضح رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اور ہم اس جادو کا انکار کرتے تھے۔ اس حق کی دعوت میں ایسی تاثیر تھی جو کہ جس کے دل پر اثر کرتی وہ اپنا تن من دھن قربان کر دیتا، چنانچہ یہ لوگ اسے جادو کہتے۔ لوگ کلام پاک سنتے اور اس کے ساتھ بھائی بھائی سے علیحدہ ہو جاتا، بیوی شوہر سے علیحدہ ہو جاتی، باپ بیٹے سے علیحدہ ہو جاتا، اسی لیے یہ اس کو جادو کہتے۔ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس سے انکار کرتے ہیں، اور
انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ اس وقت مکہ کے ساتھ طائف کا شہر تھا اور ان میں بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ تو کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہی کرنا تھا، اپنا پیغمبر ہی کسی کو بنانا تھا، تو یہ مکہ اور طائف کے بڑے شہروں میں سے بڑے بڑے امیر اور رئیس بھرے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کا انتخاب کیوں کر لیا؟ یہ محمد جو کہ یتیم تھا، جس کے پاس مال بھی نہیں تھا، اس کا ہی انتخاب کرنا تھا۔ کیا یہ رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ بات یہ ہے، نبوت اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے برگزیدہ کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو؟ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں۔ ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں سامان زندگی تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے درجوں میں بلند کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ نبوت تو اللہ کی عطا ہے، اس کی حکمت کو یہ کیا سمجھیں گے؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی ویسے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ ایک شخص امیر ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، امیر کو غریب کی ضرورت ہے، غریب کو امیر کی ضرورت ہے اپنی سامان زندگی چلانے کے لیے۔ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے تاکہ دنیا کا کاروبار چلتا رہے۔ باقی جو نبوت کا معاملہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل سے جس کو چاہا اس کو عطا فرمایا، اور تیرے رب کی رحمت تو بہتر ہے اس سے جو یہ سامان جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جاتے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھر اور ان کی سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھر اور ان کے دروازے اور تخت جن پہ یہ تکیہ لگاتے ہیں یہ سب چیزیں سونے اور چاندی کی بنا دیتے، اور یہ تمام دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ دنیا اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو خوب دے دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس طرح کافر لوگ جو ہیں وہ اس طرح تمام لوگ اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دیتے ہیں اس کو عیش و عشرت نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس چیز کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ کفر کی طرف مائل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کے گھر، سیڑھیاں، دروازے، تخت سب سونے چاندی کے بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ نہیں دیا، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، کیونکہ انسان دور اندیش نہیں ہے، فوری فائدہ سوچتا ہے، تمام لوگ کفر کی طرف مائل ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساز و سامان نہیں دیا، ورنہ یہ دنیا کا ساز و سامان اللہ کے نزدیک انتہائی حقیر ہے، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک صرف متقین کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے اصل اہمیت آخرت کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والوں کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ جب آخرت کو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو کچھ بھی عطا نہیں فرمائیں گے، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ شیطان اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے برے کاموں کو اس کے لیے سجا دیتا ہے، اسے کہتا ہے تم سے زیادہ سمجھدار ہی کوئی نہیں، جو کام تم کر رہے ہو یہی سب سے بہتر ہے۔ اس کے لیے حب دنیا، اس کے لیے حب اولاد، اس کے لیے برے کاموں کی محبت سجا کے رکھ دیتا ہے، اور وہ شخص انہی خیالات میں موت تک پڑا رہتا ہے۔ ہاں جب فرشتے آ جاتے ہیں، آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تب اس کو خیال آتا ہے ہائے کاش میں نے نیکی کر لی ہوتی، ہائے کاش میں نے اللہ کے حق میں زیادتی کر لی، ہائے کاش میں نیکی کرنے والا کیوں نہ ہو گیا۔ تو یہ شیطان اس کو بہلاتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں سے
وہ पर्दे हटने नहीं देता। और जो रहमान के जिक्र, ये सजा किसको मिलती है? जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है। इसका मतलब क्या है? जो अल्लाह को याद करता रहता है, जो नेक अमाल करता रहता है, अल्लाह ताला फिर उसको, शैतान को उससे दूर फरमा देते हैं। और जो शख्स रहमान के जिक्र से आंखें बंद कर लेता है, हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो उसका साथी बन जाता है, और ऐसे ही शैतान उन्हें सीधी राह से रोकते हैं, और वो लोग ख्याल करते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। हत्ता कि जब वो हमारे पास आएगा तो कोई कहेगा, हाय काश मेरे और तेरे दरमियान दो मशरिकों का फासला होता। तो वो बहुत बुरा साथी है, और जब तुम जुल्म कर चुके हो तो आज तुम्हें कुछ फायदा न देगा कि तुम अजाब में सारे शरीक होगे। क़यामत वाले दिन वो शैतान भी और इंसान भी दोनों दोज़ख में इकट्ठे मुश्तरिक होंगे। क्या तू बहरों को सुनवा सकता है, या तू अंधों को रास्ता दिखा सकता है, या ऐसे शख्स को जो वाज़े गुमराही में हो हदायत दे सकता है? नहीं दे सकता। नबी भी अंधों बहरों को हदायत नहीं दे सकते। नबी भी उसी को हदायत दे सकते थे जो कि हदायत लेना चाहता हो, जो मुत्तकी बनना चाहता हो, जो अल्लाह की तरफ रजू करना चाहता हो, जो दिल में तड़प, अल्लाह के लिए तड़प रखता हो। अगर हम आपको दुनिया से उठा लें तो हम इन कुफार से इंतकाम लेके रहेंगे, या हमने जिस अजाब का इनसे वादा कर रखा है अगर हम आपको भी दिखा दें तो हम इस पे कुदरत रखते हैं। असल बात यह है कि इन काफरों को हम लाजमन सजा देंगे। हो सकता है कि आपकी ये जिंदगी में हम उनको अजाब इन पे नाजिल कर दें, और ये भी हो सकता है कि आप फौत हो जाएं और आपके फौत होने के बाद हम इनको सजा दे दें। दोनों सूरतों में, आपकी जिंदगी में या आपकी जिंदगी के बाद, हम इनसे इंतकाम लेकर रहेंगे। तो आप मजबूती से थाम रखिए उस वही को जो आपकी तरफ की गई है। आप ही सीधे रास्ते पर हैं। बेशक ये तेरी कौम के लिए नसीहत है और आपके लिए भी, और अनकरीब तुमसे सवाल किया जाएगा। और पूछिए जिनको हमने आपसे कबल अपने रसूलों में से भेजा था, क्या हमने रहमान के सिवा कोई दूसरे माबूद बनाए थे जिनकी इबादत की जाए? आप उलमाए बनी इसराइल से पूछ लें, अहले किताब के सही के मुनसिफ मिजाज लोगों से पूछ लें जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, क्या उनकी किताबों में भी कहीं शिरक का जिक्र आता है? उनकी किताबों में भी कोई ऐसी तहरीर पाई जाती है जिसके मुताबिक इन शरीकों को कुछ इख्तियारात दिए गए हों? और हमने मूसा को अपनी आयात के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, तो हजरत मूसा ने कहा, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ। तो जब वो उनके पास हमारी वाज़े निशानियां लेकर आए तो वो उस वक़्त उनकी हंसी उड़ाने लगे, और हमने उन्हें जो भी निशानी दिखाई वो अपनी बहन से बढ़कर थी। हजरत मूसा ने फिरौन को मिस्र में 9 निशानियां दिखाई। सबसे पहली निशानी लाठी थी जो कि जमीन पर गिरने से वह अज़दहा बन जाती थी। इसके अलावा यदे बैजा, ये 2 निशानियां देकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को भेजा था। उस पर यके बाद दीगरे एक से बढ़कर एक निशानी उनको दिखाई जाती रही, लेकिन फिरौन और उसकी कौम ने मान कर न दिया, और फिर हमने उनको अजाब में पकड़ लिया ताकि वो लोग लौट आए। और उन्होंने, वो कहते थे, ए जादूगर, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर जो उसने तेरे से वादा कर रखा है, अब हम हदायत पाएंगे। इस आयत से मालूम हुआ कि फिरौन और उसकी कौम को यकीन हो चुका था कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसीलिए तो हर मुसीबत और अजाब के वक़्त आपसे दुआ की दरख्वास्त करते, मगर इस कदर बदबख्त थे कि जब वो तकलीफ दूर हो जाती तो उसके बाद फिर ईमान ना लाते और अपनी उन्हीं सरगर्मियों में मसरूफ रहते जो इससे वो पहले कर रहे थे। इस मौके पर मैं आपको भी याद दिलाना चाहूंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जब कुफारे मक्का ने इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उन पर कहत मुसल्लत कर दिया। अबू सुफियान आपके पास आया
اور उसने कराबतदारी का वास्ता देकर आपसे दुआ की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ अल्लाह ताला ने वो अजाब टाल दिया, लेकिन कुफार का के लक्षण वही रहे जो के पहले थे। और जब हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया तो तब वो अपना वादा तोड़ देते थे। और फिरौन ने अपनी कौम में पुकारा, ए मेरी कौम, क्या ये मिस्र की बादशाही मेरी नहीं? और ये नहरें जो मेरे नीचे से बह रही हैं, क्या तुम देखते नहीं हो? क्या मैं बेहतर हूँ या ये शख्स जो कि जलील आदमी है, नऊजुबिल्लाह, और ये वाज़े तौर पर बात भी नहीं कर सकता? अंबिया और उनकी इब्तदाई जमात हमेशा ही दुनियावी एतबार से कमजोर लोगों पर मुश्तमिल होती है, मगर ईमान और रूहानी ताकत में ये लोग बहुत आगे होते हैं और इन्हीं के जरिए अल्लाह ताला बातिल का सर तोड़ देता है। क्या मैं बेहतर हूँ या ये शख्स जो कि एक जलील आदमी है और बात भी ज्यादा अच्छी तरह नहीं कर सकता? हजरत मूसा के मुकाबले में हजरत हारून ज्यादा अच्छी बात कर सकते थे, इसीलिए हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा था कि हजरत हारून को भी मेरे साथ मेरा मददगार बना दे। तो ये रसूल कैसा है, इसके ऊपर सोने के कंगन क्यों नहीं नाजिल किए गए? इसके साथ फरिश्ते परे के परे बांधे हुए साथ क्यों नहीं आ गए? तो उसने अपनी कौम को उल्लू बना लिया और उन्होंने उसकी अताअत की। वो तो बदकिरदार लोग थे। इन दिनों में बादशाह और रईस हाथों में सोने के कंगन पहना करते थे। वैसे आपको याद होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कुफारे मक्का कई एतराज करते थे। सूरह बनी इसराइल में हमने देखा था कि कुफारे मक्का ने आप पर एतराज किया था कि आपका घर सोने का क्यों नहीं है, आप एक हमारे सामने आप पर खजाना क्यों नहीं उतरा, आपका एक बाग क्यों नहीं है जिसमें खजूर और अंगूर होते और उसके नीचे नहरें बह रही होती। तो ये एतराजात हमेशा ही कुफार अंबिया पर करते आए हैं। तो उसने अपनी कौम को उल्लू बना लिया, तो उन्होंने उसकी अताअत की। वो तो नाफरमान कौम थे, तो जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया हमने उन तमाम को गरक कर दिया और हमने उन्हें बाद में आने वालों के लिए मिसाल बना दिया। हमने उन्हें गए गुजरे बना दिया और बाद में आने वालों के लिए एक नमूना बना दिया। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो उस वक्त तेरी कौम ने शोर मचा दिया और वो कहने लगे क्या हमारे खुदा बेहतर हैं या कि वो इसको आपके सामने ये मिसाल सरासर झगड़े की खातिर लाए हैं, बल्कि असल बात ये है ये तो झगड़ा करने वाली कौम है। जब हजरत ईसा इब्ने मरियम का जिक्र किया गया तो कुफारे मक्का ने खूब शोर मचाया कि ईसाई हजरत ईसा की इबादत करते हैं, अगर वो काबिल नफरत नहीं तो हमारे बुत क्यों बुरे हैं? जब वो हजरत ईसा को खुदा बना सकते हैं तो हमने अगर माबूद पकड़ लिए तो हमने कौन सा गलत काम किया? तो क्या हमारे खुदा बेहतर हैं या कि वो? असल बात है अल्लाह ताला ने ये कब कहा था कि ईसाई दुरुस्त कर रहे हैं? जब हजरत ईसा इब्ने मरियम का जिक्र आया तो इसी अंदाज में आया कि उन लोगों ने भी शिरक किया था। अल्लाह ताला ने कब इनके शिरक को जवाब की सनद दी थी? तो ये लोग उस वक्त शोर मचाने लगे। बल्कि असल बात यह है कि ये झगड़ा करने वाली कौम है। असल बात यह है कि हजरत ईसा हमारे एक बंदे थे जिन पर हमने इनाम किया था और हमने इनको बनी इसराइल के लिए मिसाल बना दिया था। हजरत ईसा की पैदाइश मौजज़ाना तौर पर बाप के बगैर हुई थी और उन्हें तरह तरह के मौजज़ात दिए गए थे, लेकिन इन तमाम मौजज़ात के बावजूद वो अल्लाह के शरीक नहीं बन गए थे। वो हमारे बंदे थे, वो हमारी मखलूक थी और हमने उनको बनी इसराइल के लिए एक नमूना बना दिया था। और अगर हम चाहते तो जमीन में फरिश्ते पैदा कर देते जो जमीन में तुम्हारे जानशीन होते। कुफार ने यहाँ पर एक एतराज ये भी किया था कि इंसानों के बजाय फरिश्ते बतौर रसूल नाजिल होने चाहिए थे। फरमाया जा रहा है अगर हम चाहते तो दुनिया में फरिश्ते आबाद होते और हम दुनिया में फरिश्ते को रसूल बना के भेजते, लेकिन चूंकि दुनिया में फरिश्ते आबाद नहीं हैं, इंसान आबाद हैं, लिहाजा हमने उनके लिए उन्हीं जैसा एक इंसान
नमूने के तौर पर भेजा है। नबी हमेशा अपनी कौम के लिए एक नमूना होता है, अपनी कौम के लोगों में से होता है, उन्हीं की जबान बोलता है, उन्हीं के रस्म रिवाज का वो आदी होता है, और अल्लाह ताला इसलिए उसे उन्हीं में से उठाते हैं ताकि लोग ये एतराज ना कर सकें कि इसको हमारे मसाइल की हकीकत का इल्म नहीं है। अगर हम चाहते तो हम जमीन में फरिश्ते पैदा कर देते जो तुम्हारे जानशीन होते, तो तब हम फरिश्ते को ही पैगंबर बनाकर भेजते। और हजरत ईसा का आना कयामत की एक निशानी है, तो आप उनके बारे में शक न कीजिए और तुम लोग मेरी पैरवी करो, यही सीधा रास्ता है। हजरत ईसा का आना इस तरह कयामत की एक निशानी है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात हजारों लाखों साल से पैदा की हुई है। हजरत आदम से लेकर अब तक ये कायनात अल्लाह की आंखों के सामने है। अब इस कायनात का इख्तिताम करीब है। इसी एतबार से हजरत ईसा भी कयामत के आने की एक निशानी है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी कयामत की एक निशानी है। इसको अपनी नजर से ना देखिए, इसको अल्लाह की नजर से देखिए, जिसके सामने ये एक प्रोजेक्ट है। जब से इंसान इस कायनात का आगाज हुआ तब से लेके उसके इख्तिताम तक, अब इसका इख्तिताम करीब है। और शैतान तुम्हें उस रास्ते से ना रोक दे, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब हजरत ईसा वाज़ेह निशानियां लेकर आए तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ और ताकि मैं तुम पर वो बातें वाज़ेह कर दूं जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। तो बहुत से गिरोहों ने इनके दरमियान में से इख्तिलाफ किया, तो जालिमों के लिए अलमनाक दिन के अजाब से तबाही है। हजरत ईसा के बारे में दो गिरोह बड़े वाज़ेह हैं। बनी इसराइल के एक गिरोह ने यानी यहूद ने उन्हें वलदुज़्ज़ना करार दे दिया। हजरत मरियम पर हजरत ज़करिया के साथ ज़ना की तोहमत लगाई। न सिर्फ हजरत मरियम पर तोहमत लगाई बल्कि हजरत ज़करिया को इसी इल्जाम में आरे से चीर के रख दिया। और दूसरा गिरोह जो था ईसाइयों का था, जिन्होंने उनको उनकी अकीदत में गुलूफ करते करते उन्हें खुदा का बेटा करार दे दिया। तो उनके दरमियान के कुछ गिरोहों ने हजरत ईसा के बारे में इख्तिलाफ किया। ऐसा जुल्म करने वालों के लिए अलमनाक दिन के अजाब से तबाही है। क्या ये लोग इस इंतजार में हैं कि कयामत आ जाए अचानक ही और उनको पता भी न हो? उस दिन तमाम दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, हाँ मुत्तकीन ना होंगे। ए मेरे बंदो, तुम पर आज के दिन कोई खौफ नहीं और ना ही तुम गम खाओगे। जन्नतियों की दोस्तियां वहां भी बरकरार रहेंगी, जबकि जहन्नमी जो दुनिया में फिस्को फजूर के कामों में एक दूसरे के हामी नासिर और दोस्त थे, कयामत वाले दिन सख्त दुश्मन बन जाएंगे। एक दूसरे को अपनी गुमराही का सबब बताएंगे और एक दूसरे पर लानत करेंगे, बल्कि अल्लाह से दुआएं करेंगे अल्लाह ताला इनको दुगना अजाब दे दे। लेकिन जन्नती लोगों की दोस्तियां वहां भी बरकरार रहेंगी। ए मेरे बंदो, तुम पर आज के दिन कोई खौफ नहीं और ना ही तुम गम खाओगे। वो लोग जो हमारी आयात के साथ ईमान लाए और वो अल्लाह के फरमाबरदार बनकर रहे, उनके लिए हुक्म होगा जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम भी, तुम्हारी बीवियां भी, तुम्हें खुश किया जाएगा। उनके सामने सोने की प्लेटें फिराई जाएंगी और सागिर का दौर चलेगा और वहां वो सब कुछ मौजूद होगा जो दिलों को अच्छा लगेगा और आंखों को लज्जत बख्शेगा और तुम वहां हमेशा रहोगे। जन्नत में जब मुत्तकीन को दाखिल किया जाएगा तो उनकी बीवियों को भी उनके साथ ही दाखिल किया जाएगा। अगर वो जन्नत में अपने नेक अमाल की वजह से पहुंच चुकी होंगी, अगर वो जन्नत के किसी निचले दर्जे में होंगी, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ उनको बुलंद करके उनके खामदों के साथ मिला देगा। इसी तरह वो औलाद जो कि नेक थी और जन्नत में अपने अमाल के साथ दाखिल हो चुकी थी, उस औलाद का भी अगर दर्जा नीचा होगा तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करके उन्हें एक बुलंद दर्जे वाले के यहाँ इकट्ठा कर देंगे। तुम और तुम्हारी बीवियां
तुम सब जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम वहां खुश किए जाओगे। वहां उनके सामने गिलमान सोने के बर्तनों में सागर और दूसरी शराब के सागर और जन्नत की दूसरी नेमतें पेश कर रहे होंगे। जन्नत में उन्हें वो मिलेगा जो दिलों को अच्छा लगेगा। हर शख्स को जो उसका दिल चाहेगा जन्नत में अल्लाह उसकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। हदीस में एक बड़ी प्यारी बात आती है, एक शख्स जन्नत में चाहेगा कि वो हल चलाए, अल्लाह ताला उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। तो इंसान जो चाहेगा उसको वहां पर मिलेगा। और न सिर्फ ये बल्कि जन्नत इतनी खूबसूरत होगी कि जिसके साथ आंखों को भी लज्जत मिलेगी। आपको पता है आंखें खूबसूरत चीज देखकर खुश होती हैं, तो जन्नत इंतहाई खूबसूरत होगी जिसके साथ इंसान की आंखें, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी रूह तक जो है वो सरूर में आ जाएगी। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि तुम जन्नत में हमेशा रहोगे। दुनिया की जितनी भी नेमतें हों फानी होती हैं। हमें यही फिक्र बड़ा होता है, आज मालो दौलत है, आज भला नेमत है, कहीं खत्म ना हो जाए। तो जन्नत की नेमतों की सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि जन्नत की नेमतें बाकी रहेंगी। और ये वो जन्नत है जिसका तुम वारिस बनाए गए हो। इस वजह से जो तुम अमल करते थे अल्लाह ताला ऐलान कर देगा ये जन्नत तुम इसके वारिस हो। तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा यहाँ से निकल जाओ, नहीं, तुम इसके मालिक हो, तुम इसके वारिस हो अपने अमाल की वजह से। तुम्हारे लिए उसमें बहुत से फल होंगे जिनमें से तुम खाओगे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नुम के अजाब में हमेशा रहेंगे, वो अजाब उनसे कम न किया जाएगा और वो उसमें मायूस हो जाएंगे। और ये हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। और वो पुकारेंगे, ए मालिक, हमारा रब, हमारा फैसला कर दे, हमें मौत आ जाए, चाहिए कि हमारा काम तमाम कर दे हमारा रब। मालिक कहेगा, तुम तो यहीं ठहरोगे। दोषियों के लिए सबसे बड़ा अजाब ही ये होगा कि उनका हर अजाब इतना सख्त होगा जो कि मौत तक इंसान को पहुंचा देता है, लेकिन इंसान के लिए वहां मौत नहीं है। और जब जन्नतियों का और दोषियों का फैसला हो जाएगा तो मौत को एक मेंढे की शक्ल में सामने लाया जाएगा और उसको ज़बह कर दिया जाएगा। और ये जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि अब हमारे लिए जन्नत की नेमतें दायमी होंगी और कभी खत्म ना होंगी। जबकि दोषियों का ये सबसे बड़ा अजाब होगा कि अब उनको मौत नहीं होगी। दुनिया में देखे, हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो कहते हैं अच्छा मर ही जाए तो अच्छा है, इस मुसीबत से तो जान छूटेगी। लेकिन दोज़ख की हर अजाब जो है मौत से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन उन्हें मौत नहीं आएगी। वो तंग पड़ के दोज़ख के दरोगे से कहेंगे, मालिक उसका नाम है, उसे पुकारेंगे, मालिक, अल्लाह से कहो हमारा मसला खत्म कर दे, हमें खत्म कर दे, हमें मौत आ जाए। वो मालिक कहेगा, इन्नकुम माकिसून, तुम तो यहीं ठहरोगे, मौत तुम्हारा मुकद्दर नहीं है। ये मौत का ना आना तुम्हारा सबसे बड़ा अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे, लेकिन दुनिया में तुम में से अक्सर लोग हक को नापसंद करते थे। ये है तुम्हारा कसूर। या उन्होंने किसी इकदाम का फैसला कर लिया है तो हम भी फैसला कर रहे हैं। यानी ये जो नबी की मुखालफत इतने बेबांगे दखल कर रहे हैं, इतनी जो है सरकशी कर रहे हैं, क्या इन्होंने ये तय कर लिया है कि इन्होंने हर कीमत पर हक की मुखालफत ही करनी है? चलें ठीक है, हम भी एक बात का फैसला कर लेते हैं। और वो फैसला कौन सा है? अजाब। वो फैसला कौन सा है? अजाब का फैसला। क्या ये ख्याल करते हैं हम इनके राज और हम इनके मशवरे नहीं सुनते? क्यों नहीं? हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनके पास होते हैं जो कि हर चीज को लिखते रहते हैं। ए नबी, आप फरमा दीजिए, अगर रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत करने वालों में से होता। यानी अगर हक यही होता कि अल्लाह की औलाद है
उसके के साथ सिवा और माबूद हैं, तो मैं हक कबूल करने में से कभी पीछे न रहता, बल्कि मैं सबसे आगे बढ़कर सबसे पहले इस बात को कबूल करता और उसकी इबादत करता। असल बात यह है कि हक ही यही है कि अल्लाह अकेला है, अल्लाह अकेला है, और कायनात का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो पाक है, वो जमीन और आसमान का रब है और वो अरश का रब है और इन चीजों से पाक है जो वो बयान करते हैं। आप इन्हें छोड़ दीजिए कि वो अपनी बहसों में और अपनी खेल कूद में लगे रहें, यहाँ तक कि वो दिन देख लें जिसका उनसे वादा किया जाता है। बरकत वाली है वो जात जिसके लिए जमीन और आसमान की बादशाही है और जो उनके दोनों के दरमियान है, और उसी के पास क़यामत का इल्म है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वो लोग जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सिफारिश का हक नहीं रखते। हाँ, वो शख्स जो हक की गवाही दे और वो जानता भी हो सिफारिश करने की अहलियत या जिनके हक में किसी की सिफारिश कबूल हो सकती हो, उसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि उन्होंने हक की शहादत दी हो, और ये हक अल्लाह ताला की वहदानियत है। कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, जो तौहीद का कायल नहीं है, उसको सिफारिश करने की इजाजत नहीं मिल सकती। और वो लोग जो जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सिफारिश का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, वो शख्स जिसने हक की गवाही दी हो और वो इल्म भी रखता हो, और अगर आप इनसे पूछें इनको किसने पैदा किया तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। तो फिर तुम कहाँ से बहकाए जाते हो? जब अल्लाह ताला तुम्हारा खालिक और मालिक है तो फिर ये तुम्हें धोखा कैसे लग जाता है कि तुम्हारी इबादत के मुस्तहिक ये कब्रों वाले हैं, फलां पीर करने वाला है, फलां सरकार देने वाली है, जब खालिक मालिक राजिक वो है। तो शैतान तुम्हारी ये क्यों मत मार देता है? क्यों इनको अल्लाह के शरीक ठहरा लेते हो? और कसम है रसूल के इस कौल की कि बेशक ये लोग, ए मेरे रब, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना इस तवील अनथक जिद्दोजहद का पस मंजर रखता है जो आपने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए की। इस इबारत से शिकवा, गम और कुफार की हालत से मायूसी सब कुछ वाज़े होता है। अल्लाह ताला को अपने रसूल की ये दर्द भरी सदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल के इसी कौल की कसम खा ली, और इसके कौल की कसम कि ए मेरे रब, ये लोग ऐसी कौम हैं जो ईमान नहीं लाते। आपको पता है हजरत नूह ने भी 950 साल की तबलीग के बाद जब अल्लाह की तरफ से उन्हें ये वही हुई कि ये अब इन लोगों के अलावा कोई और लोग ईमान नहीं लाएगा जो अब तक ईमान ला चुके हैं, तो उन्होंने भी फिर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की थी। आप इनसे दरगुजर कर दीजिए और कहिए तुम्हें सलाम हो, तुम जल्द ही जान लोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दर्द भरी सदा की अल्लाह ताला ने कसम तो खा ली, लेकिन साथ ही आपको नसीहत क्या की? इनसे दरगुजर कर दो, अभी वक्त नहीं आया, अभी इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनको जल्द पता लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। सूरह दुखान हम शुरू कर रहे हैं। वाज़े किताब की कसम, हमने इसको एक खैर व बरकत वाली रात में नाजिल किया क्योंकि हमें तो लोगों को डराना था। इसमें इस रात हर मामले का हिकमत के साथ फैसला कर दिया जाता है। इस कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने एक बरकत वाली रात में नाजिल किया था। ये बरकत वाली रात कौन सी थी? लैलतुल कदर की रात। अल्लाह ताला ने इस कुरान को उस बरकत वाली रात में नाजिल किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में एतकाफ बैठते थे। 3 साल हो गए थे आपको गैर हिरा में एतकाफ करते हुए कि 21 रमजान की पिछले पहर तहज्जुद के वक़्त ये फरिश्ता उनके पास ये कुरान मजीद पहली वही लेकर नाजिल हुआ। उसके बाद ये कुरान मजीद
23 साल और 4 महीनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्तन फवक्तन, कभी थोड़ा कभी ज्यादा नाजिल होता रहा आपकी वफात तक। इस वाज़े किताब की कसम, हमने इस किताब को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया, क्योंकि हमें तो लोगों को डराना था। इस रात में हर मामले का हिकमत के साथ फैसला किया जाता है। इस रात इंसान के जो किस्मत के फैसले भी होते हैं, इसीलिए हमें इस रात में इबादत करने का हुक्म दिया गया है। और इस इबादत का इतना ज्यादा सवाब रखा है कि अल्लाह ताला ने इसको 1000 महीनों से बेहतर रात करार दिया है। और जो शख्स उसमें इबादत कर रहा हो, उसकी इबादत का अजर 83 साल और 4 महीने की इबादत से के बराबर भी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा करार दिया है। ये इस रात की बरकत किस वजह से थी? नज़ूल कुरान की वजह से, क्योंकि कुरान ऐसी ही बरकत वाली चीज है। अब ये कुरान आज हमारे हाथों में है, हम अगर इस पर अमल करेंगे तो इसकी बरकत से फायदा उठा लेंगे, वरना हमने जो इस कुरान के साथ जुल्म कर रखा है, हम इसको जुज़दानों में लपेट के ताकों पे सजा देते हैं। तो ये तर्ज अमल हमें सवाए गुमराही के, और ये तर्ज अमल हमें अल्लाह की नाराजगी के अलावा और कुछ नहीं देगा। इस रात हर मामले का हिकमत के साथ फैसला कर दिया जाता है। ये हमारे हुक्म से होता है, क्योंकि हम ही रसूल भेजने वाले हैं। ये तेरे रब की रहमत है, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। वो जमीन और आसमान का रब है और जो उन दोनों के दरमियान है। अगर तुम वाकई यकीन करने वाले हो, अल्लाह तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है। वो जमीन और आसमान से तुम्हें रिस्क दे रहा है, तुम्हारी सारी मादी जरूरियात पूरी करता है। वही अल्लाह तुम्हारी रूहानी जरूरत भी पूरी करता है। और इसी रूहानी जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी हदायत के लिए अंबिया और रसूलों को भेजा। न सिर्फ अंबिया और रसूलों को भेजा, बल्कि उसके साथ साथ हमारे अंदर ज़मीर भी रख दिया, जो हमें हर बुराई के वक्त मुतनब्बे करता रहता है। और उसके साथ साथ ऐसी जगहें बना दी जहां से हमें हदायत मिलती रहती है। मसाजिद, आजान, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले लोग, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले इदारे, ये अल्लाह ताला ने हमारी हदायत के लिए क़यामत तक के लिए रखती है। ये इदारे और ये लोग और ये मसाजिद और ये मदारिस, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, अल्लाह ताला के हुक्म से खुद बखुद चल रहे होते हैं। वो जमीन और आसमान का रब है और जो इन दोनों के दरमियान है। अगर तुम वाकई यकीन करने वाले हो, इंसान की रूहानी जरूरत जो है वो हदायत है। इंसान सिर्फ जिस्म के साथ नहीं है, बल्कि रूह असल चीज है। जब इंसानी जिस्म से रूह निकल जाती है तो आपको पता है इंसान को कब्र में जाके फेंक आते हैं ताकि उसे मिट्टी खा जाए। तो इस रूह की जो जरूरत है वो हदायत है। और इसी रूहानी जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया का सिलसिला रखा। वो जमीन और आसमान का रब है और जो उन दोनों के दरमियान है। अगर तुम वाकई यकीन करते हो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा करता है और मारता भी है और तुम्हारे पहले बाउजदात का भी रब है, बल्कि वो इस बात से शक में पड़े हुए हैं और खेल रहे हैं। तो आप इस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान से वाज़े धुआं जाहिर होगा। ये दर्दनाक अजाब होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानी, शरारतों पर कमर बांधे रखी, तो आपने बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन पर हजरत यूसुफ के कहत की तरह 7 साल का कहत भेज और मेरी मदद फरमा। उन पर ऐसा कहत नाजिल हुआ कि वो हड्डियां और मुर्दार तक खाने लगे। नौबत यहाँ तक पहुंची कि इनमें से कोई शख्स भूख की शिद्दत में आसमान की तरफ देखता तो आसमान उसे एक धुआं सा दिखाई देता। अबू सुफियान आपके पास आकर कहने लगा, मोहम्मद, तुम्हारी कौम हिलाक हो रही है, दुआ करो अल्लाह ये कहत खत्म कर दे। आपने दुआ फरमाई और मुशरिक भी कहने लगे, ए रब, हमसे ये अजाब दूर कर दे, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया, देखो जब ये अजाब दूर होगा तो ये लोग फिर शिरक करने लगेंगे। खैर, आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने ये अजाब उठा लिया तो वो दोबारा शिरक करने लग गए। तो आप इंतजार कीजिए जिस दिन आसमान
वाज़े धुएं के साथ आएगा, वो लोगों को ढांप लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। ए रब हमारे, हमसे अजाब दूर कर दे, हम ईमान ले आएंगे। इनके लिए कहाँ से है नसीहत का वक्त, हालांकि इनके पास तो बाज़े रसूल आ चुका है। फिर वो उससे फिर गए और उन्होंने कहा, ये तो सिखाया हुआ दीवाना है, हम इनसे अजाब को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, तुम तो फिर दोबारा करोगे। और वाकई ऐसा हुआ, वाकई ऐसा हुआ। उस वक्त तो कुफारे मक्का ने ईमान लाने का वादा किया, बाद में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर कमर बांधी। उस दिन हम इन पर सख्त गिरफ्त करेंगे, हम तो इंतकाम लेकर रहेंगे। सख्त गिरफ्त से मुराद बदर की जिल्लत आमेश कस्त है, जो कि कुफारे मक्का को जल्द ही भुगतनी पड़ी। हम तो इंतकाम लेकर रहेंगे। हमने इनसे कबल कौम फिरौन को भी आजमाया था, उनके पास भी एक इज्जत वाला रसूल आया था और उसने कहा था, मेरी तरफ अल्लाह के बंदों को लौटा दो, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। हजरत मूसा की रसालत जो थी उसका एक वाज़े मकसद भी था। हजरत मूसा बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे। बनी इसराइल को कौम फिरौन ने अपना गुलाम बना लिया था, तो हजरत मूसा का उनसे ये भी मुतालबा था कि तुम ईमान भी लाओ और जिसको तुमने गुलाम बनाया है इस कौम को आजाद कर दो। आपको पता है फिरौन इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ, इसीलिए फिर हजरत मूसा को हुक्म हुआ था कि इस कौम को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और जिसके नतीजे में फिर फिरौन और आले फिरौन तमाम को हिलाक कर दिया गया कि अल्लाह के बंदों को वापस लौटा दो, यानी बनी इसराइल को आजाद कर दो, अपनी गुलामी से इनको छुड़वा दो। बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ और तुम अल्लाह पर सरकशी ना करो। मैं तुम्हारे पास वाज़े दलील लेकर आया हूँ और मैं अपने और तुम्हारे रब की इस बात से पनाह लेता हूँ कि तुम मुझे रजम कर सको। अल्लाह ताला अपने अंबिया की, अपने रसूलों की हिफाजत करते हैं। हजरत मूसा को तो अल्लाह ताला ने खास तौर पर कहा था, इन्नी माकुमा अस्माउ व उरा व अरा, मैं मूसा तुम्हारे और हारून के साथ हूँ, मैं सुनता भी हूँ और मैं देखता भी हूँ, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मेरे से अलग हो जाओ। फिर मूसा ने अपने रब को पुकारा, ये लोग मुजरिम हैं। अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा मेरे बंदों को रात के वक्त लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा और समंदर को खड़ा छोड़कर बाहर निकल जाओ। दरमियान में बहुत से वाकयात हैं छोड़ दिए गए हैं। हजरत मूसा जब अपनी कौम समेत समंदर पार कर गए तो उन्होंने चाहा कि अपना असा मारकर समंदर को पहले की तरह रवां कर दें, लेकिन अल्लाह ताला को इल्म था कि इसी समंदर से मैंने सिर्फ मूसा को निजात नहीं देनी, बल्कि मैंने आले फिरौन को भी इसी के अंदर गरक करना है। तो इसलिए हजरत मूसा को हुक्म हुआ कि नहीं, तुमने आसा नहीं मारना, समंदर इसी तरह रहेगा। और फिर समंदर इसी तरह रहा। उसी के बीच में से फिरौन और आले फिरौन जब तमाम के तमाम घुस गए, अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि समंदर पहले की तरह रवां हो जाए, और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और उनकी कौम के सामने उनके दुश्मन को गरक करके उनका दिल ठंडा कर दिया। मेरे बंदों के साथ रात के वक्त निकलो, तुम्हारी पैरवी की जाएगी और समंदर को साकिन छोड़ दो। बेशक वो ऐसे लश्कर हैं जिनको गरक किया जाएगा। उन्होंने कितने ही बाव और कितने ही चश्मे छोड़े, कितने ही खेत और कितनी उम्दा इमारतें और कितने ही नेमत के सामान जिसमें वो मजे उड़ाते थे, और हमने एक दूसरी कौम को उसका वारिस बना दिया। ये तमाम आले फिरौन गरक हो गए और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने इनका वारिस बना दिया। तो इनके ऊपर ना तो आसमान रोया, ना जमीन रोई, और ना ही उनको मोहलत दी गई। हजरत इब्ने अब्बास से पूछा गया, क्या जमीन और आसमान किसी पे रोते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मखलूक में से कोई ऐसा नहीं जिसके लिए आसमान में एक दरवाजा न हो,
جہاں سے اس کے لیے رزق نازل ہوتا ہے اور اس کا عمل چڑھتا ہے۔ جب مومن فوت ہوتا ہے تو آسمان میں اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ کے انتظامات کیسے ہیں۔ ہر مخلوق کے لیے آسمان میں ایک دروازہ ہے جہاں سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور جہاں سے اس کے نیک عمل اللہ کے پاس چڑھتے ہیں۔ جب مومن فوت ہوتا ہے تو آسمان میں اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جہاں سے اس کا عمل چڑھتا تھا وہ دروازہ اس پہ روتا ہے، اور جب زمین اپنے نمازی سے محروم ہو جاتی ہے تو زمین بھی روتی ہے۔ قوم فرعون میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے لیے آسمان یا زمین روئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح